what approach of an honorable member of this NCDRC must be. This direct each and every gentleman doing judicial duty that we are bound to give the people three type of justice, which includes all type of justice: economical, social and political. And the basis, आधार नींव जो है वो है फंडामेंटल राइट. सबसे पहले मेरा ध्यान जाता है इस पर प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस दो आदमियों के डील में हु इज मेकिंग अदर फूल, जिससे वो ज्यादा धनी हो रहा है. ये वो नहीं है कि किसी को पैसा कमाने से यहां मना है. दैट मस्ट बी फेयर. दिस इज द कंज्यूमर कमीशन. ऑल 140 करोड़ पीपल आर कंज्यूमर इन दिस कंट्री. Honorable President, Honorable newly elevated members, Honorable all others members and the member of the bar. So I was thinking what I should say this evening. So the topic given to me automatically by our Honorable member, Mr. Rohit Kumar Singh. He said what approach of an honorable member of this NCDRC must be. I am very much clear, and I want to make clear my colleagues in the bar that here in this country there are no or different approaches by the judiciary or by members of the commission and tribunals. That is a single one, and that is the biggest and the sole approach of deciding matters is the preamble of the Indian Constitution. This direct each and every gentleman doing judicial duty that we are bound to give the people three type of justice, which includes all type of justice: economical, social and political. And the basis, आधार नींव जो है वो है फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखते हुए और इन तीन अप्रोचेस को बीच में यूज करते हुए we have to reach to the brotherhood in this country for 140 crores people of this country. Because in this commission, this is the consumer commission, all 140 crores people are consumer in this country. But matters come, some builders, some companies who are selling goods to the people. Due to this commission and due to the law, consumer law, nobody in this country should dare make fool of the consumers and to deprive the people, especially economical justice. Because business is not a name of earning money. Business is the participation in the day-to-day activities. We all are bound to do some work on daily basis for earning our livelihood. Some are advocates, some are engineers, some are judges. So only this commission can give economical justice to this country through its judgments. Every time in the mind of the people who are delivering justice in the name of NCDRC, they must keep in mind. Today even, two advocates in the Supreme Court library said to me that we are very happy nowadays. NCDRC have a very, very good president. Disposal, listening coolly, calmly. There is no difference who is senior, junior. That is and I think खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है. यह हमारी कहावत है. मुझे नहीं पता कैसा बदलता. मैं तो खेती वाला आदमी हूँ. मैंने फार्मिंग की है बचपन में. तो हम तो ये देखते थे खरबूजा पक गया तो भाई कल ये भी पक जाएगा. सब ऐसे कहते थे कहावत को सुन के. कई बार ऐसा नहीं होता था. तो इकोनॉमिकल जस्टिस करने की ड्यूटी हमारे ऑनरेबल कमीशन के कंज्यूमर के साथ. हम 140 करोड़ लोग कंज्यूमर हैं. इसमें तो दो व्यू हो ही नहीं सकते. इमीडिएटली अगर मैं भी मेंबर होता तो मेरे दिमाग में आता मेरे सामने कौन है. एक बिल्डर के नाम से एक कह रहा मेरे को फ्लैट नहीं मिला, समय पे नहीं मिला, फलाना नहीं मिला. तो मैं तो इमीडिएटली सबसे पहले मेरा ध्यान जाता है इस पर प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस दो आदमियों के डील में हु इज मेकिंग अदर फूल, जिससे वो ज्यादा धनी हो रहा है. ये वो नहीं है कि किसी को पैसा कमाने से यहां मना है. दैट मस्ट बी फेयर. फेयर करके तो कोई कमाई यहाँ पे कौन मना करता. फेयर भी तो कोई कमाई करता. घर में हर आदमी का अप्रिशिएट हम करते ही हैं. समाज के हर आदमी का भी करते हैं. But message must be there in the mind of the seller or the who is non-consumer. They should not dare to do the nonsense with the consumer of this country. That message must go from the NCDRC, because message from the NCDRC percolate down
towards State Commission and the Consumer Fora of this country. These are the words which I discussed with many friends, and it are not my own thoughts, but jurisprudence in this country, the basis और उसकी नींव एक ही है. Preamble of Indian Constitution must be 24 hours in the mind of the members and the judges during writing their judgments or the orders, because that is the लक्ष्य भाईचारा. और उसके पास 3 तरह के जस्टिस. हमारे यहाँ ज्यादातर लेन देन यही होता, मेरे पैसे खाली है, बिल्डर ने ये कर दिया, उसने कार गलत भेज दी, उसने सर्विस नहीं की, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया. सो दैट हमारे वो लोग जो इस रोल में हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं देश के लोगों को, कहीं ना कहीं वो कंज्यूमर भी होते हैं किसी दूसरी जगह. उनको किसी को भी ये दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि ही कैन डू सम एनी हाउ एनी मैनिपुलेट विद द पीपल ऑफ दिस कंट्री. नॉट इन स्टेट फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरा, स्टेट फोरा, नेशनल कमीशन, and that is the jurisprudence of this country. The preamble, keeping in the mind on the basis of fundamental right to protect the fundamental right of the people of this country. So sir, I was very happy when I was listening my friends in Supreme Court. उनको ये मैसेज मिला था कि प्रोग्राम है, तो बोले प्रोग्राम में तो हम आ नहीं पाएंगे, मगर एक बात बताएं, मगर क्या, तो दे अप्रिशिएटेड यू एंड दिस इज वेरी गुड मोमेंट टू बी प्राउड. और आई थिंक मैंने आज मीटिंग में अटेंड की है, यहाँ पे जो हमारे यहाँ चल रहा ऑनलाइन वाला सिस्टम. टू बी कॉमन इज द डिफिकल्ट टास्क, मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन दिस कंट्री. हिपोक्रेसी के अंदर एक आम इंसान होना सबसे बड़ा काम है, और आम इंसान होने में कोई कंपटीशन नहीं है, सारी पोस्टें खाली हैं. ऑनरेबल प्रेसिडेंट हमारे उसी तरह के यहाँ जितने भी एडवोकेट से मेरी बात हुई, और मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ, कि वो ह्यूमैनिटी और आम होना तो कोई सीखे ऑनरेबल प्रेसिडेंट से. वेरी वेरी गुड. दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट सर ऑफ योर लाइफ. और आज एक मेंबरों ने एक और कहा, मैंने कहा आके देखा तो पर्दे तो ये ठीक है, मगर आजकल मॉडर्न पर्दे इसी तरह के होते हैं. उन्होंने कहा नहीं और कई जगह पर्दे ऐसे, हमारे यहाँ भी कोई पर्दे थोड़ा ठीक लग जाए, और इफ देयर इज सम फंड विद आवर एनसीडीआरसी एंड अंडर द पावर ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, तो सर इसको देखना कुछ अगर हो जाए. और रोहित जी की असली परीक्षा है, क्योंकि जुडिशरी में मैडम तो जुडिशरी से हैं, उसमें ज्यादा नहीं. हमारे जो लोग ब्यूरोक्रेसी से आते हैं उनके लिए ज्यादा ये चैलेंजिंग जॉब है, बल्कि खुला वातावरण है. वहां पर तो किसी नेता के कहने से, मंत्री संतरी कहने से, दैट इज द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ओनली. दे हैव टू डू ऑलवेज समथिंग अंडर प्रेशर. अपनी दिल की इच्छा न्याय करने की है. आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, तो इसके लिए धन्यवाद करिए आप समय को, तो ये मौका मिला है. एंड डू वट एवर यू लाइक. और जो चीज सेक्रेटरी होके नहीं कर पाए आप, यहाँ आप वो कर सकते हैं. आपका डेली एक फैसला इस देश की नींव को मजबूत करने में काम आएगा. आपका डेली एक फैसला उन 2 लोगों के चेहरे पे हंसी लाएगा. ये नहीं केस कौन लूज करेगा, नो, इट डज नॉट मैटर ऑलवेज. दोनों लोगों से, दोनों लोग इस मानसिकता से बाहर जाएं, जो चालू बनता था उसको भी लगे मेरा चालू बनाए चला नहीं, और जिसको वाकई न्याय चाहिए था उसको लगा भाई ये जगह तो जबरदस्त है, हर हालत में न्याय मिला, दूसरे वाले ने किसी ने चालाकियां की. सर ये मैसेज है, इसका नाम है विन विन पोजीशन, ताकि कोई आदमी यहाँ दरवाजे से बाहर निकल के ये ना जाए कि मैं मूर्ख बना सकता हूँ एनसीडीआरसी. दैट इज द बिग जॉब. एक और सर माइंड में बात है, मैं अभी चलते चलते, न्याय करने का मौका विधिवत फॉर्मल तरीके से बहुत कम लोगों को मिलता है. हम सब न्याय के प्रोफेशन में सब मदद करते हैं. और आपने कहा कि काउंटर, रिजवेंडर और काउंटर अगेन एंड अगेन एप्लीकेशन, हमें इनको बड़े लाइटली लेना चाहिए, पॉजिटिवली लेना चाहिए. ये इसलिए है ताकि किसी के मन में वहम ना रह जाए, मैंने अपने वकील के जरिए जो मेरे मन में था, मेरे पेट में जो दर्द था, वो सारा व्यक्त नहीं किया, तो उसे बर्डन लेने की जरूरत ही नहीं. अल्टीमेटली व्हेन वी आर क्लियर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस ऑफ दिस कंट्री, नथिंग, दिस ह्यूज फाइल इज नथिंग. हमने बहुत बार देखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जमानतों पे कई बार होता है. इवन सुप्रीम कोर्ट में भी जमानतों के बारे में कई दिन सुनवाई हुई, कई दिन लोगों के फैसले नहीं आए. तो होल कंट्री एंड एडवोकेट्स क्राइड
कि दिस इज नॉट गुड। वहां सारी फाइलें थोड़ा पढ़नी है, हमें सिर्फ इतना देखना फंडामेंटल राइट का वायलेशन क्या आपको चाहिए, क्यों आदमी सिंपल कंडीशन आर देयर, कोई भाग ना जाए, कोई गवाहों को दबा ना ले, सिंपल। और क्या फाइल को इसको इतने पेज पढ़ने की किसको जरूरत है? इट इज नॉट नेसेसिटी टू प्रोटेक्टिंग एंड गिविंग बेल टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तो हम ये मानते हैं, हाई कोर्ट से डर जाते हैं लोग कि भाई उनका इंस्पेक्टिंग जज है, उनका मूड कैसा है, हाउ दे आर पॉलिटिकली मेकिंग स्टेटमेंट्स, कई बार इससे होता है। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के जजेस के लिए तो बड़ा वो नहीं है। तो देश में अगर फंडामेंटल राइट का जो भी नुकसान अगर होता है तो सारी जिम्मेवारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की है, हाई कोर्ट्स की, और सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है फिर सुप्रीम कोर्ट की। थैंक यू वेरी मच।